آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کے بارے میں جس کا ایک پائلٹ افیسر پاکستان پہنچا تو اس کی خاطر تواضع چائے اور مکھوں کے ساتھ کی گئی۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے ابھینندن اور ابھیلندن دو ایسے موضوع تھے جو ٹاپ ٹرینڈ میں چلتے رہے۔ اس کے بعد تو پاکستان کی چائے اور بھی مشہور ہو گئی۔ علامہ اقبال کا مشہور قومی نغمہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا الفاظ سے شروع ہونے والا اور انڈس دریا کے نام سے انڈیا پڑھنے والا ملک جس کا سرکاری نام بھارت بھی ہے۔ بھارت کے حقائق شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ بھارت جسے عموماً ہندوستان، ہند یا انڈیا بھی کہا جاتا ہے اور رسمی طور پر جمہوریہ بھارت جنوبی ایشیا میں واقع ایک ملک ہے۔ پرانے دور سے ہی مختلف مذاہب کو یہاں رچنے بسنے کا موقع ملا۔ بھارت آبادی کے لحاظ سے اس وقت سب سے بڑا ملک بن گیا ہے اور اس لحاظ سے یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی کہلاتا ہے۔ بھارت کے 1 ارب 35 کروڑ سے زائد باشندے 100 سے زائد زبانیں بولتے ہیں۔ بھارت کے مشرق میں بنگلہ دیش اور میانمار، شمال میں بھوٹان، چین اور نیپال، مغرب میں پاکستان اور جنوب مشرق میں بحر ہند واقع ہے۔ بھارت کے نکوبار اور انڈمان جزیرے تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے سمندری حدود سے جڑے ہوئے ہیں۔ بھارت کے بعض مغربی علاقے زمانہ قدیم میں وادی سندھ کے مراکز میں شامل تھے جو تجارت اور نفع بخش سلطنت کے لیے قدیم زمانے سے ہی دنیا میں مشہور تھی۔ 4 مشہور مذاہب جن میں ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور سکھ مت نے اس ملک میں جنم لیا، جبکہ جودھا مت، مسیحیت اور اسلام اپنے ابتدائی دور میں ہی یہاں پہنچ چکے تھے جس نے یہاں کے علاقے کی تہذیب و ثقافت پر انمٹ نقوش مرتب کیے۔ اس علاقے پر آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط 18ویں صدی میں شروع ہوا، جبکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں برطانیہ کی براہ راست حکومت قائم ہوئی۔ فی الحال بھارت کی معیشت عمومی جی ڈی پی کے لحاظ سے 7ویں بڑی اور قوت خرید کے حوالے سے تیسری بڑی معیشت ہے۔ 1991 کی معاشی اصلاحات نے اسے دنیا کی تیسری ابھرتی معیشتوں میں لا کھڑا کیا ہے اور یہ تقریباً صنعتی ملک کا درجہ حاصل کرنے والا ملک ہے۔ بہرحال اس کے باوجود یہ ملک غربت، کرپشن، خوراک اور صحت کے مسائل کا شکار ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس یہ ملک خطے کا ایک طاقتور ملک بھی ہے۔ اس کی فوج بلحاظ تعداد دنیا کی تیسری بڑی قوت ہے اور دفاعی خرچ کے لحاظ سے یہ دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے۔ بھارت ایک وفاقی جمہوریہ ہے جو پارلیمانی نظام کے تحت 29 ریاستوں اور 7 وفاقی علاقوں پر مشتمل ہے۔ بھارت ایک کثیر اللسانی، مذہبی، ثقافتی اور نسلی معاشرہ ہے، نیز یہ کئی ملک کے انواع اقسام کی جنگلی حیات سے بھی مالا مال ملک ہے۔ برصغیر پاک و ہند صرف 3 ادوار میں ایک ملک رہا، ایک تو چندرگپت موریہ کے عہد میں اور دوسرے مغلیہ دور میں اور تیسرے انگریزوں کے زمانے میں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت نسبتاً سب سے بڑی تھی۔ انگریزوں کے زمانے میں سلطنت مغلیہ دور سے قدرے کم تھی۔ ان 3 ادوار کے علاوہ ہندوستان ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا رہا۔ 7ویں صدی میں عربوں نے مغربی برصغیر کے علاقے سندھ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور عربوں کے قابض ہونے کے بعد مقامی لوگوں نے بڑی تیزی سے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد 13ویں صدی میں ترکوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور شمالی ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ 16ویں صدی میں مغلوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور آہستہ آہستہ تمام ہندوستان کے حاکم بن گئے۔ مغلوں کے حملے سے پہلے ہی ہندوستان میں مقامی لوگوں کی بڑی تعداد مسلمان تھی۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے مغلوں کو اپنے ماتحت کر لیا اور اس طرح ہندوستان کے حاکم بن گئے۔ 1857 کے غدر کے بعد حکومت کمپنی سے برطانوی تاج کے پاس چلی گئی۔ 1876 کے بعد سے برطانوی شاہان کو شہنشاہ ہندوستان کا عہدہ بھی مل گیا۔ ملک کو سنبھالنے کے لیے برطانوی حاکموں نے اپنی بانٹو اور راج کرو پالیسی کو استعمال کیا۔ برطانوی پیداوار سستی اور مقامی پیداوار مہنگی کر کے مقامی صنعت کو نقصان پہنچایا گیا اور اس طرح سے ہندوستان سے پیسہ برطانیہ جاتا گیا۔ بھارت کی تحریک آزادی کا زیادہ تر زور نسلی امتیاز اور تابع تجارت کے پالیسی کے خلاف تھا۔ برطانوی راج کے خلاف ایک زیادہ تر غیر تشدد پسند تحریک چلا کر موہن داس کرم چند گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، ابوالکلام آزاد، بال گنگا دھر تلک اور سبھاش چندر بوس کی قیادت میں بھارت نے 1947 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ ہندوستان تقسیم ہو کر 2 نئے ملک پاکستان اور بھارت میں بٹ گیا۔ 1962 میں بھارت کی متنازع علاقوں پر چین سے جنگ ہوئی۔ 1965 میں کشمیر پر بھارت کی پاکستان سے جنگ ہوئی۔ 1971 میں پاکستان میں خانہ جنگی ہوئی اور اس میں بھارتی مداخلت بھی ہوئی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش
देश वजूद में आया। भारत एक झूठी जमहूरियत वाला मुल्क है। जमहूरियत बस नाम के लिए ही है, कामों में उसका कोई अमल दखल नहीं। भारत अपनी 29 रियासतों और मरकजी ज़ेर हुकूमत इलाकों का यूनियन है, जिसका बुनियादी ढांचा वफाकी होता है। भारत की रियासत का सरबराह सदर है। सदर और नायब सदर 5 साल के अरसे के लिए मुंतखब होते हैं। भारत में इंतजामी ताकत काबीना के पास होती है। काबीना के सरबराह वजीर आजम होते हैं। सदर उनको वजीर आजम मुकर्रर करते हैं, जिनको पार्लिमान की अक्सरियती जमात ने नामजद किया होता है। फिर वजीर आजम की इस्लाह पर दूसरे वज़रा मुकर्रर होते हैं। 1947 में अपनी आज़ादी के बाद से भारत ने ज़्यादातर ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुक कायम रखा है। 1950 की दहाई में भारत ने भरपूर तरीके से अफ्रीका और एशिया में यूरोपीय ममालिक से आज़ादी की हमायत की और गैर वाबस्ता तहरीक में एक अहम किरदार अदा किया। 1980 की दहाई में भारत ने पड़ोसी ममालिक की दावत पर 2 ममालिक में मुख्तसर फौजी मुदाखलत की। मालदीव, श्रीलंका और दीगर ममालिक में ऑपरेशन के दौरान में भारतीय अमन फौज भेजी, जबकि भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ एक कशीदा ताल्लुक शुरू से बरकरार रहा और दोनों मुल्क 3 बार जंगों 1965, 1971 और 1999 मद्दे मुकाबिल आए। तनाज़ा कश्मीर इन जंगों की सबसे बड़ी वजह थी। 1974 में भारत ने अपने पहले एटमी हथियारों का तजर्बा किया और फिर 1958 में ज़ेर ज़मीन तजर्बात किए। भारत के पास अब अनवाओ इक़साम के जौहरी हथियार भी मौजूद हैं। भारत अब रूस के साथ मिलकर जदीद लड़ाका तैयारे तैयार कर रहा है, जो जौहरी हथियारों से लैस होकर हमला आवर होने की सलाहियत भी रखते हैं। तकरीबन 1.3 मिलियन सरगर्म फौजियों के साथ भारतीय फौज दुनिया में सबसे तीसरी बड़ी फौजी ताकत है। भारत के सदर भारतीय मुस्लिम अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं। साल 2011 में भारतीय दिफाई बजट 36 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। 2008 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत खरीदने की ताकत के मामले में भारतीय फौज के फौजी इखराजात 72 अरब अमेरिकी डॉलर रहे। साल 2011 में भारतीय वजारत दफा के सालाना दिफाई बजट में 11% इजाफा हुआ। ताहम ये रकम हुकूमत की दीगर शाखों के जरिए फौजी इखराजात की बजट में शामिल नहीं होती। हालिया सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दरामद कनिंदा बन गया। भारत इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। अगर दुनिया की आबादी को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो उन 6 हिस्सों में से एक हिस्सा आबादी भारत की है। भारत में कुल दुनिया के 17.5% लोग आबाद हैं। आबादी की मुख्तलिफ शुमारियात और तनासबात को देख कर माहिरीन का कहना है कि 2025 तक भारत दुनिया का पहला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा और इसकी आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। भारत की 50% से ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, यानी जिनकी उम्र 25 साल से कम है। भारत में 1 साल से 35 साल तक की उम्र वाले अफराद पूरे भारत की 65% आबादी हैं। भारत में 1000 से जायद नस्ली गिरोह हैं जो 1000 से जायद जबानें बोलते हैं। भारत 2 अहम जबानी खानदान आरियाई जबानें और द्राविडी जबानों की जाय पैदाइश है। भारत में हिंदी जबान सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है। अंग्रेजी जबान को मुल्क भर में अच्छी हैसियत हासिल है। तिजारत, तालीम और इंतजामिया में अंग्रेजी जबान को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। आइन में 1976 में की जाने वाली 42वीं तरमीम के मुताबिक भारत एक लादीनी रियासत है। इसका मतलब है कि रियासत तमाम मज़ाहिब के साथ मसावी रवैया इख्तियार करेगी। बरसगीर कई बड़े मज़ाहिब का पैदाइशी वतन है, जैसे हिंदू, बुद्ध मत, जीन मत और सिख। भारत की पूरी तारीख में मजहब मुल्क की सकाफत का एक अहम हिस्सा रहा है। मजहबी तनाव और मजहबी इत्दाल दोनों मुल्क में बजरिए कानून और रसूम के कायम हुए। भारत का आइन साफ अल्फाज में मजहबी आज़ादी को बुनियादी हक करार देता है। आज पूरी दुनिया की कुल हिंदू आबादी का 90% भारत में मौजूद है। ज्यादातर हिंदू समाधियाँ और मंदिर भारत में हैं। इसी तरह ये ज्यादातर हिंदू संतों की जन्म भूमि है। आला इबाद दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी ज़ियारत कुंभ मेला की मेजबानी करता है, जहाँ पर दुनिया भर के हिंदू भारत के 3 मुकद्दस दरियाओं दरियाए गंगा, दरियाए जमुना और सरस्वती के संगम पर गुस्ल के लिए आते हैं। मगरब में भारतीय तारकीन वतन ने हिंदू फलसफा के कई पहलुओं को आम भी किया है। एक सर्वे के मुताबिक भारत की कुल आबादी का 79% हिस्सा हिंदू और 14% मुसलमान है, जबकि 6% दीगर मज़ाहिब के लोग जैसे मसीहत, सिख, बुद्ध मत वगैरह मौजूद हैं। मसीहत भारत का तीसरा बड़ा मजहब है। पारसी और यहूदी कदीम भारत में आबाद थे। आज के दौर में इनकी तादाद महज हजारों में है। भारत की आबादी की गालिब अक्सरियत हिंदू मत की पैरोकार है, मगर कोई एक तारीफ कभी देखने में नहीं आई कि हिंदू कौन है। आर्य समाज के कई लोग बुत परस्ती को नहीं मानते, मगर वो भी हिंदू हैं। बर्मू समाज के लोग तौहीद का
अकीदा रख कर भी हिंदू हैं। हिंदू धर्म के ज्यादातर लोग कसरत उल्वा और बुत परस्ती के कायल हैं, मगर वो उन लोगों को भी अपने आप में कबूल करते हैं। हद यह है कि खुदा को नहीं मानने वाले भी मुल्हिद हिंदू हैं। भारत एक सेकुलर मुल्क है, जहाँ जिस तरह मनादिर जगह जगह मौजूद हैं, इसी तरह मसाजिद, गिरजाघर और गिरद्वारे भी मौजूद हैं। भारत में कई ज़बानें और बोलियां बोली जाती हैं, मगर मुल्क में वफाकी हुकूमत की सरकारी ज़बान हिंदी को करार देने के बावजूद उसे कौमी ज़बान का दर्जा नहीं दिया गया। इसकी वजह गालिबन ये है कि हम ज़बान और बोली में हद फासिल कैसे कायम करें। ये तय नहीं है कि लोग जदीद तौर पर भोजपुरी ज़बान बोलते हैं, जो हिंदी ज़बान से काफ़ी मुशाबहत रखती है, और दोनों ज़बान के लोग एक ही अंदाज में बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। ताम भोजपुरी लोग अपनी ज़बान को हिंदी से अलग मानते हैं। यही हाल राजस्थानी ज़बान और कुछ और बोलियों का भी है। हिंदुस्तान एक ऐसा असरत ज़दा मुल्क है जो एक तरफ चांद पर चढ़ाई पर अरबों डॉलर लुटा रहा है, तो दूसरी तरफ निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढाने के लिए खजाने का मुंह खोले हुए है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब भारत में पाए जाते हैं, और जिनमें सबसे ज्यादा अनपढ़ भी इंडिया में ही मौजूद हैं। इंडिया बेरोजगारी में सरे फहरिस्त है। शाइनिंग इंडिया में कम से कम 2 करोड़ लोग चूहे खाकर पेट की आग बुझाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जिस्म फरोशी भी होती है। इंडिया की 70% आबादी, जी हाँ 70% आबादी के पास बैतुल खला की सहूलत नहीं, और ये इतना बड़ी प्रॉब्लम है कि बॉलीवुड को टॉयलेट पर फिल्म बनानी पड़ी। जिस्मानी अज़ा की फरोख्त में भी शाइनिंग इंडिया नंबर 1 है, और इसी इंडिया के बहुत से देहातों के बाहर ऐसे बोर्ड आवेजा होते हैं जिन पर जिल्ली हरूफ में लिखा होता है, इस गाँव में हर किसी का गुर्दा बराए फरोख्त है। भारत के मुख्तलिफ सूबों में पाकिस्तानी परचम लहराना मामूल बन चुका है, यानी पाकिस्तानी परचम इनकी छेड़ बन चुका है। भारत में एड्स के फैलाव की रफ्तार तेज तरीन है। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ एड्स के मरीजों की बाकायदा ट्रेन चलती है। भारत के शहर आगरा में वाक़ ताजमहल एक मकबरा है, और इसकी तामीर मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में करवाई थी। ताजमहल मुगल तर्ज तामीर का उम्दा नमूना है। इसकी तामीराती तर्ज फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी तर्ज तमीर के अज्जा का अनोखा मिलाप है। 1983 में ताजमहल को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तालीम, साइंस और कल्चर ने आलमी सकाफती विरसे में शुमार किया। ताजमहल के अंदर और बाहर दौराओं पर अल्लाह ताला के 99 इसमें गिरामी इस खूबसूरत खिताती से कनिंदा है कि देखने वाले को वर्ता हैरत में डाल देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ताजमहल दिन और रात में मुख्तलिफ रंग बदलता है। सहर के वक्त ताजमहल का रंग गुलाबी और शाम के वक्त दूधिया सफेद हो जाता है, और इन बदलते रंगों को औरत के मजाज से तस्बीह दी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।